ہم شکر گزار ہیں کہ بڑے رحمت اور فضل کے اور میری دعا خدا وہ اپنے کلام کو نازل کرے اور تیرا کلام تیری خواہش کے مطابق کام کرے اور ہم محض سننے والے نہ ہوں بلکہ اس پر عمل کرنے والے اسی یسوع کے نام سے آمین. You know, praise the Lord. ہم سیکنڈ سیشن کی طرف چاہتے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر ٹائم پرویز رستے میں اور اس کے بعد آخری سیشن کا ڈاکٹر ٹائم پرویز لیں گے. اور میں برڈی کو کہہ رہا تھا کہ جب یار آپ پریچ کر رہے تھے بہت ساری چیزیں میں دیکھ رہا تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد ایک خاص میسج ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. میں اس کا دوبارہ نکالیے گیش کا اس کا 19واں باب اور کچھ چیزوں کو میں اس کے ساتھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ایز اے پریچر, ایز اے منسٹر آف گاڈ یہ مجھے اور آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے. پگیش 19واں باب ہم اسی کو کنٹینیو رکھیں گے. پگیش اس کا 19واں باب اس کی بات میں کو دوبارہ دیکھیں گے خدا کے کلام مقدس میں کیا لکھا ہے. خدا کے کلام میں لکھا بارہویں آیت میں تب ان مردوں نے لوط سے کہا کیا یہاں تیرا اور اب یہ مرد جب بائبل مردوں کا ذکر کر رہی ہے یہ کس کا ذکر کر رہی ہے؟ The angels, وہی فرشتے جو آئے اس شہر میں تاکہ خدا کی عدالت کر سکے. وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ لوط کو کہہ رہے ہیں. اور ان کا سب سے پہلا کوسچن کیا تھا؟ کیا یہاں تیرا کوئی That's the big question. So یہ سوال جب انہوں کیا تو اس کے بعد ان کا دماغ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں جو کوئی اس شہر میں ہو سب کو اس مقام سے ایز اے preacher خدا کے لوگ ہوتے ہوئے what is our responsibility؟ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ سنیے گا جب یہ فرشتے لوط کے پاس آئے ان کے پاس خدا کا پیغام تھا اور وہ پیغام کیا تھا کہ خدا اس شہر کی عدالت کرنے کو ہے. ان کے گناہ کے سبب سے خدا نے فیصلہ کیا کہ میں عدالت کروں گا. اگر 18ویں چیپٹر کو اور 19ویں چیپٹر کو اسٹڈی کریں تو خدا کا میں جاؤں گا اور دیکھوں گا. سو میں جب اس پیسج کو دیکھ رہا تھا اس سے پہلے خدا عدالت کرے خدا نے اپرچونٹی موقع ضرور دے گا. سو خدا نے آ کے دیکھا اور خدا نے فیصلہ کیا اور ان فرشتوں نے کیا کہا سب کو اس مقام سے کیا کر. سو میں بڑی سمپل سی انٹرپریٹیشن کروں گا. ایز اے پریچر میری اور آپ کا کام کیا ہے؟ خدا مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے کہ جو لوگ خدا نے ہمارے سپورٹ کیے ان کو نکالے. کہاں سے؟ دنیا سے, دنیا کی خواہشوں سے, دنیا کی سوچوں سے, جسم کی خواہشوں سے ہمیں نکالنے کی ضرورت ہے. اور خدا کے فرشتوں نے کیا کہا اس شہر میں سب کو اس مقام سے کیا کر. اور یسوع نے کیا کہا خدا کی کلام نے کہا تم دنیا میں کو ہو لیکن دنیا کے. سو ایز اے پریچر میری اور آپ کی ذمہ داری کیا خدا دوپہر مجھے اور آپ کو کیا دیا؟ ہم نے لوگوں کو نکالنا ہے. لوگوں کو اور میں نے بڑی سمپل سی باتیں کہی. ہمیں ان کو کہاں گناہ سے, دنیا سے, دنیا کی سوچوں سے, جسم کی خواہشوں سے. میری اور آپ کی خدمت لوگوں کو خوش کرنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو دنیا سے نکالنا ہے. اور سنیے گا جب تک مسیح میرے اور آپ کے اندر نہیں آئے گا ہم دنیا سے نکل نہیں سکتے. اور کیسی عظیم گواہی ہوگی what a great testimony کیا دنیا میں کو ہو لیکن دنیا میرے اور آپ سے نظر نہ آئے بلکہ دنیا کا تخلیق کرنے والا ہمارے اندر سے نظر آئے. اور جب لوگ مجھے اور آپ کو دیکھیں اور وہ یہ کہیں یہ دنیا میں تو ہے لیکن دنیا ان کے اندر سے نظر نہیں آ رہی بلکہ خدا کا بیٹا یسوع ہماری زندگیوں سے نظر آنا چاہیے. سو ایز اے پریچر میرا اور آپ کا فوکس کیا. لیکن بعض کا جیسے کوئی کہہ رہا تھا ہم خادموں میں سمجھو
धोखा कर लिया है, हमने कंप्रोमाइज कर लिया है। बजाय मसीह कलीसिया से नजर आए, अब दुनिया कलीसिया से नजर आ रही है। और हमें कितना मोहतात होने की जरूरत है। और मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं, इसलिए तो कलीसिया में हॉलीवुड और बॉलीवुड आ गया है। What a tragedy. So as a preacher, फरिश्तों के लू से क्या कहा, उस सब इस मकाम से क्या कर, क्योंकि हम इस मकाम को क्या करने के लिए आए हैं, इसलिए कि इनका शौक खुदा के हुजूर बहुत बुलंद हुआ और खुदा ने इसे अब छोड़ दिया जल्दी से। तब लूत ने बाहर जाके क्या किया, अपने गवाहों से जिन्होंने उसकी बेटियों से ब्याह किया कर वाक्य की होगा, उठो इस मकान से, क्योंकि खुदावंद इस शहर को, लेकिन वो अपने दिमागों की नजर में, देखो अब जब भी लोगों को, how many times as a preacher आप लोगों की को निकालने की कोशिश करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, लोग हमारा तमस करवाते हैं। ये गुस्सा का करते हैं। I have seen, हमने बहुत दफा लोगों को छुड़ाने की, बचाने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों के लिए तमस कर बने। लेकिन it's not a game church। खुदा ने मुझे और आपको इस खिदमत के लिए बुलाया है, और मेरी और आपकी खिदमत का मेन मकसद क्या है, लोगों को निकालना, लोगों को बचाना। लेकिन मैं आज दोपहर आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ, शायद मैं और आप लोगों के लिए तमस्कर बने, लेकिन कभी डिस्करेज ना होइएगा। खुदा ने जो खिदमत मेरे और आपके सुपुर्द की है, ईमानदारी के साथ, ज्ञानदारी के साथ, जाफशानी के साथ रूहों को बचाते रहिएगा, अंजील का काम करते रहिएगा। हो सकता है आप हजारों को ना बचाए, लेकिन हो सकता है आप किसी एक रूह को निकाल कर ले आए, आप किसी एक जान को बचा के वहां से ले आए। Who knows? जैसा भी बुआ की कहा था, कल का सब मुझे गौर सुना रखा कि एक नौजवान यहाँ आया, उसकी जिंदगी में खुदा ने काम किया, और वो यहाँ से किसी दूसरे मुल्क चला गया। और ये मुझे कहा था कि वो कुछ 2-3 संडे चर्च में आया, और उसने कहा जिस दिन मैं चर्च में आया मैंने कुछ खो दिया था। और उसी दिन खुदा ने कलाम के वसीले ये कलाम किया। मैं प्रीच कर रहा था संडे सर्विस में, मैं कहा शायद आपने बहुत कीमती अपना कुछ खो दिया है, लेकिन खुदा फिर भी वापस करने की कुदरत रखता है। और उसने कहा उस बात ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। आज चर्चेस में दुनिया आ रही है, मैं गोठाता, और इसलिए मैं बहुत मुताब हूं। मेरा एक ही काम है, खुदा ने मुझे और आपको इसलिए बुलाया कि हम लोगों को खुश करें। खुदा ने इसलिए बुलाया है कि कलाम से लोगों को पाक करें। क्योंकि पौलुस ने कहा अगर मैं इंसानों को खुश करता तो मसीह का बंदा। अच्छा, मेरा ये तजुर्बा 38 बरस की खिदमत में, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन इंसान फिर भी आपसे खुश। आप 100 दफा नेकी करें, एक दफा आपने इनकार किया, यू मिस। और मैं पिछले नियम को यह कह रहा था, एज अ पास्टर मेरी जिम्मेदारी 2 चीजों की है, टू लव पीपल एंड टू प्रीच द गॉस्पेल। दैट्स ऑल। कि मेरा काम है कि मैं लोगों से मोहब्बत करूं और सच्चाई की बुनियादी करूं, लेकिन मैं लोगों से करने नहीं करूंगा, मैं उनको बैक नहीं करूंगा कि मसीह के पास आओ, चर्च में आओ। नो, जिनकी जिंदगी में मसीह होगा आपको उनसे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। खुदा के घर में आने के लिए, वर्शिप करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, जब मसीह उनकी जिंदगी में होगा, चर्च उनकी फिक्र बन जाएगा। कैसा होगा? सो जब उसने अपने गवाहों से कहा उठो और इस मकान से, अच्छा लोग की कहेंगे, लो जी पागली कहेंगे, ऐ भी ना करो, वो भी ना करो, फिर की करिए? हेलो, ऐसा है कि नहीं है? अच्छा, आजकल कुछ मॉडर्न प्रीचर को क्या कहते हैं, लीगलिज्म आ गया है। अगर शादी ब्याह में आप डांस नहीं करेंगे, लीगलिज्म है, एंजॉय। मैं कहता हूं ओके, अगर थोड़ा सा गा भी गया तो सो व्हाट, एंजॉय, लीगलिज्म तो नहीं ना। लेकिन सुनिएगा, यही वो मकाम है
जहां हमने यीशु को पेश करना है और यीशु की गवाही और यीशु की जिंदगी लोगों को दिखानी है। हम दुनिया में तो है लेकिन हम दुनिया में नहीं है, हमें उसके दुनिया से ला कर लिया है, चुन लिया है। इस जहां के हम शक्ल हम वहां से निकल आए हैं, उसी हमें निकाल दिया है। कैसा होगा? और मैं कल एक और चर्च के नौजवान की गवाही सुना था, मैं कहा वाह, उसने तौबा की और वो किसी फंक्शन में गया तो किसी ने उसे कहा जरा नाच, उसने कहा नहीं नाच सकता क्योंकि अब मेरी जिंदगी बदल गई है और मैंने यीशु को कबूल कर लिया। What is your testimony? What is my testimony? अच्छा से सोचना, सिर्फ बाकी में भी गवाही ठीक होनी चाहिए। What about worshiper? What about presider? What about Sunday school teacher? Choir? Everyone? Huh? So लेकिन मुंह का क्या गाया है? मजाक। पंक्ति में जब सुबह हरि को खुश करने लूट से क्या करवाई? Oh my God. Hello, I love that. फरिश्तों में किससे जल्दी करवाई? He looked like he's a lazy preacher. मुझे मालूम है आपको सारे एक्टिव आने से तो कोई भी सुस्त नहीं होगा। So what kind of preacher we are? लूट जब सुबह हुई तो फरिश्तों में और आगे क्या लिखा है? और कहा उठ उठ। I love that. मैं सिर्फ आपका मैं सिर्फ आपको कुछ वर्ड देगा। जल्दी करवाई और क्या कहा? अपनी बीवी अपनी दोनों जो यहां है। फरिश्ते के अगर दिमाग नहीं जाना चाहते, अच्छा हमारा कल्चर ऐसा अगर कुछ दिमाग में क्या खुश करता है ना, और अब गलती होगी एक गला में मिलेगी। सो फरिश्तों में जल्दी करवाई, क्यों करवाई? अगर इसके पीछे बड़ी सारी बातें, शायद वो सोच रहा हो कि मैं अगर अपने दिमागों को मिस कर दूंगा तो मेरी बेटियों का क्या होगा। He was thinking, वो सोच रहा होगा, प्लान कर रहा होगा, लेकिन फरिश्तों ने क्या कहा? अपनी बीवी को ले और जो सुनिएगा, मैं बड़ा सिंपल सी करूं। Where we are, हम कहां हैं? हम ये बहुत बड़ी बात है। जो यहां है, अगर मैं और आप मसीह में होंगे तो हम जरूर वहां से निकल आएंगे। ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की ओ माय गॉड गिरफ्तार होकर बस कठोर में टाइम वी थिंक वी आर प्रीचर, वी आर मिनिस्टर, हम पर कोई असर नहीं होगा। हम खुदा के चुने हुए हैं, हम खुदा के बुलाए हुए हैं, हम खुदा के लाके हुए हैं, हम पर कोई असर नहीं होगा, हमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन सुनिएगा, अगर खुदा ने फैसला किया है और हम वहां से नहीं निकलेंगे तो जो दुनिया का हाल होगा वही मेरे और आपके साथ होगा। अक्सर मैंने ईमानदारों को भी ये कहते सुना कि जी दुनिया को भी तो रखना है, तो सुन लीजिएगा, जो दुनिया को रखेगा वो दुनिया में रह जाएगा। सो व्हाट अ वार्निंग! फरिश्ते ने लूत को क्या वार्निंग दी? अगर तू तखीर कर देगा, जल्दी नहीं करेगा, तो जो कुछ इस गुनाहगारों के साथ होगा वही। सो इसका क्या मतलब? वी आर नॉट एग्जेम्प्टेड। अगर मैं और आप उस दुनिया से ना निकले, उस चीजों से ना निकले, तो जो दुनिया का अंजाम होगा वही मेरा और आपका भी हो सकता है। ओके नेक्स्ट। ऐसा ना हो कि तू भी इस शहर की बदी में अब सोल में काबिल हो। अभी जब मैं ये भाई कलाम सुना रहा था, खुदा का लुक एट दैट, सोल में आए, मगर उसने जल्दी की। नो नो नो, सो फरिश्तों से क्या करवा रहे हैं? सो हम ऐसे कितने लोग हैं जिनको खुदा निकाल रहा है लेकिन वो निकलना नहीं चाह रहे।
opportunity over and over. खुदा आपको बार बार मौका दे रहा है. खुदा शायद आपके साथ बार बार बोल रहा हो, कलाम कर रहा हो कि मैं तुझे यहाँ से निकालना चाह रहा हूँ, बचाना चाहता हूँ, महफूज करना चाह रहा हूँ. But we are still there. So लूट का क्या कर रहा था? फरिश्ता से क्या करवा रहा है? जल्दी कर, उठ, निकल. लेकिन उसने क्या किया? So what kind of preacher we are? अच्छा, मैं इस बात से मोस्टली खादिमों के पास जाता हूँ, स्टे करता हूँ. पिछले दिनों मैं किसी चर्च में था और संडे रात को मैंने उनके चर्च में हफ्ते को कलाम सुनाया. संडे सर्विस को मैंने कलाम सुनाना था और जब संडे सर्विस का टाइम हो गया 10 बजे को मैं 9:45 बजे बिल्कुल रेडी था कि मुझे 10 बजे चर्च में एंटर होना है. सो इवन मुझसे पहले मैं रेडी था और जिस पास्टर के पास का जिनके चर्च में था 10 बजे के मैं कहा पास्टर अभी आप तैयार नहीं हो. ओके, 10:15 बजे के मैं कहा सर सर्विस शुरू हो गया 10:30. 11:15 बजे पादरी साहब की मैसेज आई कि भाई जी पास्टर साहब को के आ जाए. मैं कहा जी मैं उनको कह रहा हूं मुझे ले जाए. What a tragedy. आपको मालूम है कि आज हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है. इससे पहले प्रीचर इबादत में जाए पहले वो देखता कितने लोग आए हैं. सुनेगा, मैं आज दोपहर आपको ये याद दिलाना चाहता हूं, जब मैं और आप इबादत में जाएं इंसानों को देख के ना जाइएगा, आसमानों के खुदा को देख के जाइएगा. क्या वो वहां मौजूद है? अगर वो है, इंसान हो या ना हो, अगर लश्करों का खुदा वहां है तो मेरे और आपके लिए यही काफी है. लेकिन आज प्रीचर क्या कहता है? जी पहले जाके देखें कितने. अच्छा, हमसे ना उतनी देर तक दुआओं के जब तक लोग जमा, हमारी वर्शिप भी उतनी देर तक नहीं होगी जब तक मजमा होगा. हमसे मुनादी भी उतनी देर तक नहीं होगी जब तक हाल. पिछले दिनों किसी और ने मुझे इनवाइट किया तो मैंने कहा जी ये भाई जो वर्शिप करने के लिए आया इसको क्या वर्शिप शुरू करे. वो ना करे, मैं परेशान थी ये वर्शिप क्यों नहीं कर रहा. सो मैंने उस पास्टर से पूछा जी आपने इनको वर्शिप के लिए बुलाया तो आप इनसे वर्शिप क्यों नहीं करवा रहे. कहते नहीं जी अभी नहीं वो करेंगे. मैं कहा जी क्यों? क्योंकि अभी लोग. व्हाट? लेट मी टेल यू, हम इन चीजों से निकलना होगा. मेरी वर्शिप का तलक आपकी वर्शिप का तलक ऑडियंस के साथ नहीं है. हमारी वर्शिप का तलक हमारे आसमानी बाप के साथ है, मुगलजी के साथ है, निजात हिदा के साथ है. मैं इंसानों को देखकर वर्शिप नहीं करूंगा, जिसने मुझे बचाया है मैं उसको देखकर उसकी वर्शिप करूंगा. लेकिन आज मुझे और आपको इन चीजों से निकलने की क्या है? सुना क्या? उठ, क्या कर, जल्दी कर. सो खुदा को लेजी लोग पसंद है. उसने देर लगाई तो उन मर्दों में उसकी बीवी. अच्छा, अब वो का लेजी प्रीचर फरिश्ते ने पहले राम ने समझाया, समझे कोई? तो फिर फरिश्तों ने क्या काम किया? Look, watch your scripture. उसकी बीवी और उसके दोनों बेटों का हाथ पकड़ा क्योंकि और उसको निकाल कर. हेलो, कितना आप खुदा को समझते हैं? अगर खुदा लूट पर मेहरबानी ना करता उसका भी वही अंजाम होता जो दूसरे लोगों का. सुनिएगा, खुदा मेरे और आपके साथ मेहरबान है. Praise the Lord. वो मुझे और आपको ना निकालता तो मैं और आप भी गुनाह में हलाक हो जाते. किसने मुझे और आपको निकाला है? काम. उसने अपने ज्ञान और हमारी काबिलियत में नहीं, हमारे कामों में नहीं, खुदा ने अपनी मेहरबानी से मुझे और आपको निकाला है. इसका क्या मतलब है? अगर थोड़ा सा और गौर कीजिएगा, इसका मतलब है लूट भी नहीं निकलना चाहता था.
हेलो, लूट नहीं, a great preacher, लेकिन वो चीजों से खुदा बार बार कह रहे, मौका देगा, फैसला कर, निकल, जल्दी कर, लेकिन वो निकलना। अच्छा, मुझे नहीं पता खुदा किस किस का हाथ पकड़ेगा, है? क्यों फरिश्ते ने उसका हाथ पकड़ा? क्यों? क्योंकि खुदा ने ये अहद किया था कि जब तक ये निकलेगा नहीं। ओ भाई, सो वाह, सुनिएगा, मैं अभी जो खुदा मुझे कहेगा मैं आपका कुछ जानने लगा। आपकी रास्तबाज जिंदगी खुदा को गाला करने से रोकी रखेगी। मैं फिर रिपीट करूं, बस अगर सोचते हैं मैं क्या हूं, मैं कौन हूं? अगर आपका मसीह पर ईमान है, खुदा उस वक्त का कुछ नहीं करेगा जब तक आप वहां से निकालना नहीं। जब इस दुनिया का फैसला होगा, जब इस दुनिया की गालत होगी, मुझे यहां रैप्चर नजर आनी है। Praise the Lord। आपको इस पैसेज में पुशीदा आमद नजर आएगी। इससे पहले कि यीशु वापस आए दुनिया की अदालत में, जिसने उसने लूट को सुकून से निकाला, वो कलीसिया को इस दुनिया से उठा लेगा, ताकि दुनिया की अदालत करे। और वो कब तक अदालत नहीं करेगा जब तक वो मुझे आपको वहां से निकालना। लेकिन मत भूलिएगा, वो आपके घर से ही गाना शुरू करेगा। सो हमें निकलने की जरूरत है। मे गॉड हेल्प अस। सो दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर, क्योंकि खुदा की मेहरबानी और उसे आज चर्च को निकलने की जरूरत है। चर्च को क्यों मैं बार बार कर, आजकल आपको मालूम है पिछले दिनों कुछ सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा था। मैंने एक बात सीखी है, खादम वो नहीं होता जो सियासतदानों के पीछे जाए। मेरी निगाह में मर के खुदा वो होता है जिसके पीछे दुनिया और सियासतदान आए। अगर आप एलिया की स्टडी करें तो एलिया बादशाह के पीछे नहीं था, बादशाह एलिया के पीछे था। लेकिन मैं वापस जाऊंगा कि हमें निकलना है, टेस्टामेंटली हमें निकलना है। हमें कलीसिया में से वो चीजें जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, वो लुआटे, वो प्रैक्टिस जिसका खुदा के कलाम के साथ करना नहीं है, हमें उन चीजों से निकलने की क्या है? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी क्योंकि हमने ये सीखा है। मैं उनको ये कहता हूं, आपने इंसानों से सीखा है या खुदा के कलाम से सीखा है? पौलुस ने कहा, मैं जो खुशखबरी सुनाता हूं मैंने इंसानों से नहीं सीखी। So we have to be careful। हमें पुरानी बातों से, पुरानी रिवायतों से, मजहब से निकलने की क्या है? पास्टर, मुझे एज अ पास्टर की चीजों के लिए स्ट्रगल करनी पड़े। लोग कहते हैं हमने तो पहले ऐसे करते थे। मैं कहता हूं यहां ऐसे है क्योंकि हम कलाम को देखेंगे। The purpose of the being church and being ministry, हम लोगों को देखकर कुछ नहीं करेंगे, हम खुदा के कलाम को देखकर सब कुछ करेंगे। और जो खुदा का कलाम कहेगा हमें वो करना है। सो हमें निकलने की क्या है? जरूरत है। सो उनको शहर से क्या कर दिया? सो आज दोपहर को जो आपको देखना होगा मुझे और आपको कहां से निकलने की क्या है? गिरजमैन एरिया। और मैं आप खुदा को कैसे कहूं, मुझ पर साहिब वो कौन सा एरिया है जहां दुनिया में मेरे ऊपर मेहरबानी की है और मुझे मौका बार बार क्या करे कि मैं वहां से निकलूं और मैं आगे की तरफ जाऊं। लेकिन हम उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते। But see the hand of God and the mercy of God। खुदा मेहरबान है, लेकिन मत खुदा की मेहरबानी को जरा आजमाइएगा। हम बहुत से प्रीचरों को खुदा पर चुनती देता है, निकल यहां से, निकल यहां से। और युवा के जब उनको बाहर निकाला है तो उससे कहा अपनी जान बचाने को ना पीछे मुड़ के देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना और उस पहाड़ को चला जा ताकि तू हलाक हो जाए। So the purpose is that खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता।
خدا کسی کی. اور میں اس فیصلے کی آخری بات کر کے میں آگے چلوں گا. 2 فرشتے لوط کو اور اس کے خاندان کو کیا کر رہے ہیں؟ ریسکیو، بچا رہے ہیں. کتنی جانیں؟ کتنی جانیں؟ اور فرشتے کتنے؟ ان میں سے بھی کتنے بچے؟ 2 فرشتوں نے کتنی جانیں بچائیں؟ ہو سکتا ہے آپ 3000 نہ بچائیں، آپ 300 بھی نہ بچائیں. اگر آپ نے 3 روحیں بچا دی ہیں تو یہی کافی ہے. فرشتے ہونے کے بعد جو کتنے لوگوں کو بچا سکے؟ بس ہم خادموں کے لیے سب سے بڑا چیلنج اور آزمائش پتہ کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو ڈیل نہیں کرتے. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ اس گناہ میں چرچ میں ہوتے ہوئے وہ گناہ میں کیا ہوئے ہیں؟ پھنسے ہوں، الجھے ہوئے. لیکن ہمیں پتہ کیا فیل ہوتا ہے؟ کہیں میں اپنے ممبروں کو لوز. لیکن ایز اے پاسٹر واٹ آئی لرن، میرا کام لوگوں کو بلڈنگ میں رکھنا نہیں ہے بلکہ ان کو مسیح میں رکھنا ہے. کیونکہ مجھے خدا کو ساتھ دینا ہوگا. اگر خدا مجھے کہے کہ میں نے تجھے لوگ دیے تھے اور تم نے ان کے گناہوں کے بارے ان کو اعتبار نہیں کیا، ان کو پریچ نہیں کیا، ان کو بتایا نہیں، تو یو آر ریسپانسبل. میں اپنی بادشاہی قائم نہیں کرنا چاہتا، خدا نے ہمیں اپنے بیٹے کی بادشاہی قائم کرنے کے لیے بلایا ہے. سو ہمیں کلیسیا کو کیا کرنا ہے؟ خود بھی نمبر 1 ہمیں خود بھی نکلنا ہے اور کلیسیا کو بھی نکالنا ہے. نمبر 3 اچھا کیسا پریچر سے بڈھی بھی نہ بچا سکے؟ ہلو، I don't want to be a such preacher. I don't want to be a such preacher. You know, سب سے بڑی خدمت معلوم ہے میں نے 35 برس میں کیا سیکھی ہے؟ سب سے بڑا خادم وہ ہے جس نے اپنے خاندان کو بچا لیا ہے. I don't want to run all over the world. کہ میرے تو پوری دنیا میں جانے کا شوق ہو. خدا نے میرے ساتھ کلام کیا کہ میں تجھے پوری دنیا میں استعمال کروں گا. پچھلے دنوں میں کسی کو کہہ رہا تھا اس خدا کو یہ کہہ دے جو تجھے دنیا میں استعمال کرنا چاہتا ہے، اس خدا کو یہ کہہ خدا اس سے پہلے تو مجھے دنیا میں استعمال کر، مجھے میرے خاندان میں استعمال کر تاکہ میں سب سے پہلے اپنے خاندان کو بچا لوں. اس سے پہلے میں دنیا کو بچاؤں. میری دنیا میرا خاندان ہے، میری دنیا میری بیوی بچی ہے، مجھے ان کو بچانا ہے. میری گواہی ان کے سامنے کیا ہے؟ یہ میری دنیا میری فیملی ہے. واٹ اے ٹریجڈی کہ جب میں آسمان کی بادشاہی میں جاؤں میرے بیوی بچے میرے ساتھ ہی نہ ہوں. بہتر ہے کہ میں خدمت سے بریک لے کر اپنے بچوں کو پہلے بیوی بچوں کو بچاؤں. That's the mistake. سو میں واپس سے پکڑ کیوں میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. ہمیں نہیں کرنا ہے لالچ سے، سمجھوتے کی روح سے. کیونکہ آج ہم خادموں نے کلیسیا نے کیا کر دیا ہے؟ سمجھوتا کر دیا. So we need to come out from the spirit of compromise. We need to come out from where we are feel comfortable, جہاں ہم اپنے آپ کو رام کے پسند کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے سچائی کو سننا مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں سوچ رہا ہوں جس نے جانا ہے بائے بائے. بعد میں یسوع نے کیا تھا؟ جو میرا خون نہیں پیتا اور گوشت اس میں زندگی. تو یوحنا کی انجیل میں لکھا بہت سارے لوگ واپس چلے گئے. کیوں؟ ان کا بھی یہ طریق کو بہت سمجھتا ہے. تو یسوع واپس ان کے پیچھے بھاگیں گے نہیں. چلو میں اپنا میسج چینج کر لیتا ہوں، میرا چرچ میں واپس آتا ہوں. کیا یسوع نے یہ کیا؟ بلکہ جو باقی بچے یسوع نے ان کو بھی کہا اگر تم بھی جانا چاہتے ہو never change your message. سنیے گا، اگر ہم نے پیغام کو بدل دیا تو ہم زندگیوں کو بدل نہیں سکتے. سو سمجھوتے کی اسپرٹ سے نکلے، مذہب کی اسپرٹ سے، جسم کی خواہشوں سے، کلیسیا کو دنیا سے نکلنا. دنیا کو کلیسیا میں آنے نہ دیں
بلکہ کلیسیا دنیا کے لیے کیا بنے؟ ایک گواہی، ایک نمونہ بن جائے. لیکن آج ہم خادموں نے دنیا کے ساتھ کیا کر لیا؟ میں سوچتا ہوں ایک خادم بجائے سیاست دانوں کے ساتھ چلتا ہوا نظر آئے تو کیا گواہی ہوگی. لیکن اگر وہی خادم خدا کے ساتھ چلتا ہوا نظر آئے تو میری آپ کی گواہی کیسی گواہی ہوگی. جب ہم نے یہ جگہ خریدی کسی پاسٹر نے مجھے کال کی، سنیے گا، اس نے کہا پاسٹر صاحب ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں. میں کہا جی کیا؟ ہمارا ایک MLA جاننے والا ہے، وہ آپ کو اتنا فنڈ دے گا کہ وہ آپ کو بلڈنگ بنا دے گا. اچھا جی، واہ گڈ. میں کہا جی کتنا فنڈ؟ جی کوئی 50 لاکھ، لیکن اس میں سے وہ کچھ رکھے گا. میں کہا کرپشن شروع. اچھا میں نے پھر وہ کچھ رکھے گا پھر اپنی نمبر پلیٹ بھی لگائے گا. جی ہاں. میں کہا اوکے. میں کہا جی اس سے بہتر ہے کہ میں خالی پلاٹ پہ کام کر رہا ہوں. جس نے یہ کام شروع کیا اس کو خود ہی پورا کرے گا، کیونکہ یہ انسانوں کا کام نہیں، یہ آسمانوں کے خدا کا کام ہے، اور اگر یہ اس کا کام ہے تو وہ خود اسے پورا کرے گا. مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. سو جب بنی اسرائیل کال کا سامنا کر رہے تھے تو 3.5 سال بارش نہ ہوئی، تو ایلیا پہاڑ پہ جا کے کیا کرنے لگا؟ تو اس نے اپنے نوکر کو کتنی دفعہ بھیجا؟ 60 مرتبہ. اور کہتے کا جا کے دیکھ لوگ آیا کہ نہیں. ایلیا بار بار اپنے نوکر کو بھیج رہا تھا جا کے کیا دیکھ نہیں. اچھا یہاں ایک ہی لفظ ہے لیکن اس کو چینج کرنے لگا. کلوزلی لسن. کلاؤڈ اور کلوڈ. وہ دیکھ کہہ رہا تھا، ایلیا کہہ رہا تھا جا کے دیکھ بادل آیا کہ نہیں. کلوڈ بادل کو کیا انگلش میں کہتے ہیں، لیکن آج کے پیچھے کیا کہتے ہیں؟ دیکھ کیا کلوڈ آیا کہ نہیں. سنے گا، مرد خدا وہ نہیں ہوگا جو کلوڈ لاتا ہے، مرد خدا وہ ہوگا جو کلوڈ لاتا ہے تاکہ روح کی بارش ہونا شروع ہو. مت کلوڈ کو دیکھ کے چلے گا. اگر خدا نے ایک روح کے لیے آپ کو پیغام دیا ہے، ایک روح کے لیے پیغام لے کر چلے جائے. اگر خدا نے آپ کو ایک خاندان کے لیے بھیجا ہے، ایک خاندان کے لیے چلے جائے. نمبرنگ کے چکر میں ڈلے گا. لیکن میں آج دوپہر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، فرشتیں کا یہاں سے ہم خادموں کو نکلنے کی، کلیسیا کو نکلنے کی، کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں کے ساتھ کیا ہو چکے ہیں؟ اسٹاک ہو چکے ہیں. اگر میں نہ نکلتا، اچھا میں نکلنا نہیں چاہتا تھا، خدا میں نکال کے لایا. آپ کا بول مائے صاحب اچھا ہمارا بھی دوسرا حال ہے، خدا نکالنا چاہتا لیکن نصیب. لیکن اگر نہ نکلے تو پھر رزلٹ کیا ہوگا؟ لیکن وہ کسی کی ہلاکت، لیکن ہم خود ایسا چناؤ اور فیصلہ کر لیتے ہیں. لیکن آج دوپہر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، خدا مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے مجھے بھی نکلنا ہے اور میرے خاندان کو بھی نکلنا ہے. Praise the Lord. وہ دعوت کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ واپس آئے گا. اور اگر میں اور آپ اس کی تابعداری میں زندگی گزاریں گے، اس کے خوف میں، اس کی پاکیزگی میں زندگی گزاریں گے، تو وہ ہمیں سنبھال لے گا. سو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اچھا ہر آدمی نکلنا چاہنا پر کتنے؟ ہلو، میں رات کو خدا کو کہہ رہا تھا، خدا تم نے مجھے ابھی تک پاکستان میں کیوں رکھا ہے؟ میں کل کسی بھائی کو کہہ رہا تھا، میرے ساتھ قاسم نرسل کا کہہ رہا تھا کہ پوری دنیا میں اپرچونٹی تھی. میں اور میری فیملی 2 دفعہ پوری فیملی میں امریکہ میں تھے، بڑے لوگوں کا امریکہ رہ چکا. لیکن میری خوشی یہ نہیں ہے کہ میں کس ملک میں ہوں، میری خوشی یہ ہے میں اس کی مرضی میں ہوں. اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کسی بڑے ملک میں ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، خدا کی مرضی میں ہونا سب سے بڑی بات ہے. اچھا امریکہ جانا، امریکہ کی حالت کی ہے، صدوم ہے کہ نہیں؟ سیم سیکس میرج. تو صدوم اور عمورہ میں کیا ہوا تھا؟
मैं अमेरिका में एक फैमिली में चर्च में कलाम सुना रहा था और एक मियाँ बीवी ने बोले they were crying bitterly. वो बोले तो उनके पास के सब आप हमारे घर में चले, मैं कहा जिस लोग मेरी फ्लाइट है मुझे पाकिस्तान वापस जाना है, they cried bitterly. उनके सिर्फ 5 मिनट आ जाए, मियाँ बीवी ने रोना शुरू कर दिया. मैंने अपने पास के दोस्त को कहा, मैं कहा यार कौन कह रहे जब आप मुझे एयरपोर्ट पे ड्रॉप करो क्या मैं 5 मिनट को दे सकता हूँ, क्योंकि ये मुझे नहीं मालूम इनकी क्या प्रॉब्लम है. सो आप कहे ठीक है. उसने कहा ठीक है भैया मैं आपको ले जाऊंगा. और जब मैं उस मियाँ बीवी के पास पहुंचा, बुजुर्ग दो लोग हो गए थे, तो मैंने कहा जी मेरे पास टाइम था, मुझे बताया प्रॉब्लम क्या है. उसने कहा हमारे 2 ही बेटे थे, हम पाकिस्तान से अमेरिका आए, हमने सोचा हमारे बच्चों की जिंदगी बेहतर हो जाएगी. तो मैं कहा सो व्हाट क्या हुआ. उनका हमने दोनों बच्चों को खो दिया है. मैं कहा जी क्या मतलब. उनका जी हाँ बड़े बेटे ने एक गैर कौम की लड़की के साथ शादी करके हमें छोड़ दिया है और दूसरे ने अपनी जिन्स ही बदल दी है. अमेरिका में यह है कि आप लड़के से लड़की बन सकते हैं. सो मैं कहा माय गुडनेस. तो मैं उस दिन से और मुताद हो गया कर गया कि खुदा की मर्जी को जानना कितना जरूरी है. हमें दुनिया से निकलना है. आलमे बाला की चीजों की कि दुनिया और दुनिया की चीजें क्या हो जाए. सो मैं रात को पूछ रहा था, मैं कहा खुदा मुझे भी निकाल दे, बहुत खिदमत करती है. तो बाद में खुदा ने क्या कहा, वो स्पोक टू मी लास्ट नाइट. खुदा का सुन मैंने सिर्फ तुझे यहां रखा है कि तू लोगों का एग्जाम्पल हो कि तू रहने के बावजूद यहां है. और सुनेगा आखिरी बार मैं इस पैसेज में करूंगा, बस लोगों के लिए एग्जाम्पल बनने के लिए मुझे आपको दुख उठाना होगा. अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम लोगों के लिए क्या बने, नमूना बने, तो उसके लिए मुझे आपको क्या उठाना होगा. यीशु हमें नमूना दे के गया और उसने दुख उठा के नमूना दिया ताकि मैं और आप उसके नक्शे कदम पर चले. सुनिएगा मैं इसके साथ क्लोज करूंगा कि मेरी और आपकी ख्वाहिश सिर्फ बाहर जाने के लिए ना हो, मैं खुदा के रूह के मसा में, खुदा की रहनुमाई में और खुदा का खादम होते हुए आज ये कहना चाहता हूं, मेरी और आपकी डिजायर ये हो कि मुझे उसकी बादशाह में जाना है, मुझे मैं यरूशलेम में जाना है, जहाँ मैं और आप हमेशा उसके साथ रहे और मेरे और आपके साथ रहे. ये है खुदा का मंसूबा मेरे और आपके लिए. और इसके लिए उसने कहा जहां मैं होऊंगा तुम भी वही होगे. ये लोग बाहर जाना कोई बुरी बात नहीं है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं. कीप इन योर माइंड. शायद आप ये सोचेंगे मैं बाहर जाने के लिए क्या हूं. नो नो, अगर खुदा आपको लेके जाना चाहता है प्रेज़ गॉड, इसके लिए खुदा का क्या हो. लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं ऑटो फोकस है. खुदा अपने वक्त पर जो कुछ मेरी और आपकी जिंदगी में करना चाहेगा वो, लेकिन मेरा और आपका फोकस सिंपल कौन होना चाहिए. हमें निकलना है. चर्च सुनिएगा, अगर चर्च सियासतदानों पर असर करे तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर सियासत का चर्च पर असर अंदाज हो जाए तो ये खतरनाक बात है. आज दोपहर आप जिस कलीसिया में खुदा ने आपको रखा है, खुदा से कि खुदा वो कौन सी चीज है जिसे मुझे और तेरी कलीसिया को निकलने की जरूरत है. और खुदा ने लूट को कहा अपने खानदान को लेकर. सो खुदा आज हम प्रीचरों को क्या कर रहा है, जो कलीसिया में तुझे किया उसको लेकर निकल. That's all. लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं. लेकिन ये टाइम नहीं होगा आपके पास, बहुत शॉर्ट टाइम है. आइए से खुदा हम इस अपॉर्चुनिटी को मिस आए लम्हा के लिए अपनी आंखें बंद करें. उससे कहे खुदा वो कौन सा एरिया है जहां से हमें निकलने की जरूरत है. लो और इसे कहे खुदा हो सकता है मैंने तखरीर कर दी है, लेकिन मैं मजीद तखरीर नहीं करूंगा. तो जहां कहेगा जो कहेगा मैं ताबेदारी करूंगा. हम निकलेंगे, हम इंजील के लिए निकलेंगे, हम दुआई के लिए निकलेंगे, हम खुशखबरी सुनाने के लिए निकलेंगे.
क्षमा के लिए अपने कदमों पे खड़े हो और सुनेगा खुदा मेरे और आपके ऊपर मेहरबानी कर रहा है और वो आज दोपहर मुझे आपको कह रहा है इट्स टाइम टू कम आउट, ये निकलने का वक्त है। सुनेगा अगर पतरस कश्ती से ना निकलता तो वो पानी में कभी ना चलता। हमें अपनी अनाके जगह से, हमें दुनिया की सोचों से, हमें जिस्म की ख्वाहिशों से, हमें समझौते की स्पिरिट से निकलना है, हमें दुनिया की स्पिरिट से निकलना है। नौजवान बेटे बेटियों सुनिएगा, मैं बड़ी बोल कर आपको ये कहने लगा हूं, आए लाइक जोसेफ की तरह, यूसुफ की तरह बन जाए, आए लूत की तरह, आस्टर की तरह बन जाए, जो दुनिया के फैशन को लोग ना करे, उनके अंदर से दुनिया नजर ना आए, दुनिया बनाने वालों की जिंदगी से नजर आए। खुदा मेरे और आपके ऊपर मेहरबानी कर रहा है, उसे कि खुदा मैं तेरी इस मेहरबानी के लिए तेरा शुक्र करूं। शायद मैंने ताखीर की है, लेकिन तुम्हें आज मुझे रिमाइंडर दिया है कि मुझे निकलना होगा, अपने खानदान को लेकर निकलना होगा, कलीसिया को लेकर निकलना होगा, अपनी लीडरशिप को लेकर निकलना होगा। शख्सी तौर पर, खानदानी तौर पर, तीसरे तौर से हमें वहां से निकाल। खुदा जहां हमसे खताई हमें माफ कर और हम पर रहम कर, उसी यीशु के नाम से हमें खुशी रखेगा।